That's it. Okay. All are here. I hope my voice is audible to all of you. It is very clear. Yes, Yes, sir. sir. That's good. Yes, sir. As you all can see today that we are going to discuss our assignments since it is pending from last few days. So I think today, first of all, we should work upon all these questions and then we should start working on the other part of the things. Okay, so we are starting. Okay, okay. I hope the screen is Yes, visible. sir. To all of you. Questions are readable. Yes, sir. yes, किसी को sir. क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है? Sir, screen is visible, but question font is too small. Sir, now it is okay. I hope the question font is fine now. Sir, yes, fine. Yes, sir. Okay, so let's Yes, have sir. a let's start with the work. Okay. First question is dash is a non-metal but is lustrous. We need to focus on the blank here. It is saying that there is something which is a non-metal but it is lustrous. It is non-metal but not lustrous. It is non-metal but not lustrous. It is also non-metal but not lustrous. Iodine is a non-metal and it is lustrous. Yes, Am I right? yes, sir. ये Yes, sir. Yes, sir. मैंने मैंने Yes, इसमें sir. आंसर्स भी दिए हुए हैं तो आप ऑप्शंस को देख के ना आंसर बोलें आपको मेरे सामने इमेज नहीं बनानी है आपको लर्न करना है ठीक है व्हेन यू ट्राई टू लर्न आपकी इमेज खुद के नजरों में बननी चाहिए आपकी क्या इमेज है वो मुझे टेस्ट से मालूम पड़ जाएगा कि क्या मतलब क्या बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे अपना दिमाग यूज करके सोचना है भले ही आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है पर आप सोचिए कि क्या मैं इस करेक्ट आंसर से मीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ और नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताना भी है हालांकि मैं समझा भी रहा हूँ ठीक है चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है ठीक है आप जानते हो गैलियम क्या है ये एक मेटल है ये तो मैंने पढ़ाया था आप सभी को Yes, पढ़ाया sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. विद लो मेल्टिंग पॉइंट और ये आपके हाँ पाम पे भी मेल्ट जाएगा melts in palm. That's a very big thing. On the gallium part, it's a metal. So, so this is not the metalloid. So this is the correct answer. I hope this is fine with you all. Yes, sir. Now let's Yes, move to sir. third question. The third question is something which is malleable and ductile better describe or best describes solution, metal, compound, non-metal. You know that malleability and ductility are property of metals. This is the right. Yes, sir. Yes, sir. This is the right answer. Yes, sir. Anybody who is having doubt? No, sir. I hope questions are very clear. No, sir. No It is doubt. readable. You are able to understand Yes, what I'm sir. trying to tell you. If you're Yes, sir. finding any doubt, let me know. Raise your voice. I will again repeat the question. Once again, I'm coming to chat section. If anybody is having any doubt in question, I would like to see his or her chat or her message. फर्स्ट पेज हमने डिस्कस कर लिया है 3 क्वेश्चन डिस्कस किए किसी को डाउट है दैट्स गुड सुप्रीता फाइन सुप्रीता is having no doubt that's good Sanchit is also having no doubt Manoj is also having no doubt that's good fine Arnav very good Dishan Dev that's good okay so now we will be moving to next sheet that is the second part of the second sheet of the assignment Sir, Deepak के पास एक doubt. okay so now let's move to next sheet so this is the next question the question is one of the सर following दीपक ने एक चैट पे डाउट लिखा है. अच्छा एक सेकंड sir is there any metalloid which is also alloy you are saying कि आप देखो alloy क्या होता है पहले तो अभी बताओ can you tell me what is alloy
मैं दीपक अलॉय क्या होता है? Sir, can I? अलॉय क्या है? एलिमेंट है या Mixture. physically वो है? सब मिक्सचर है Sir, homogeneous mixture है. Solid and solid का. मेटलॉइड क्या है? मिक्सचर मेटलॉइड एक एलिमेंट है बेटा, अलॉय Yes, मिक्सचर sir. है। Metalloid element. अंडरस्टूड? यस सर। Yes. समझ रहे हो? एक मिक्सचर है, एक एलिमेंट है। दीपक एक एलिमेंट है, एक मिक्सचर है। तो एलिमेंट को मिक्सचर से कंफ्यूज नहीं करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्रिक यूज किया है। ट्रिक ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स। मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। अब देख सकते हैं कि आप एक जगह मैंने लिखा CO और फिर लिखा CO, फिर लिखा NO और फिर लिखा NO। ठीक है, इसका नाम क्या है? Carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड अब आप मुझे बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट है या कंपाउंड है? दो डिफरेंट एटम। कंपाउंड है। ये क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट क्या ये होता है? cobalt है. ये क्या है? ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, इस नोबेलियम नाम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 102। ठीक है, बेसिकली ये एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम नोबेलियम रखा गया है। ठीक है, वैसे 100 से ना हम स्टार्ट करते जब नेम ना, तो हम आयुक्त इस नेमिंग करते हैं। तो इसका आयुक्त इस नेम क्या होगा? अनिल बायम। अनिल बायम। ये सिखाऊंगा आप सभी को 3rd चैप्टर में। फिलहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कभी कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको हेल्प मिले। ये समझाना चाहता हूँ कि सिंबल भी होते हैं। ये केमिकल सिंबल है एलिमेंट का, ये भी केमिकल सिंबल है एलिमेंट का। ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं, आप इससे कंफ्यूज मत होना। और ये कंपाउंड के फॉर्मूलेज हैं। तो ये कोबाल्ट है और ये क्या है? ये आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये भी क्या है? कंपाउंड है। तो CONNO यानी कि 1 and 3 ये दोनों क्या है? कंपाउंड्स हैं। तो ऑप्शन इज सी हियर। 1 and 3 देख सकते हैं आप सभी। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No doubts. सर नोबेलियम का एटॉमिक नंबर क्या लिखा था? मुझे दिखा नहीं अच्छे से, ब्लर दिख रहा है। 102 बेटा, 102। ओके सर। 102। सर ये सर कोबैट क्या होता है सर? क्या? सर कोबैट क्या होता है? कोबाल्ट बेटा, कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट है। ये भी एक तरह का मेटल है बेटा, कह सकते हो ट्रांजिशन मेटल। सर नोबेलियम क्या है? क्या बेटा? सर नोबेलियम क्या है? नोबेलियम एक तरह का बेटा रेडियो एक्टिव मेटल है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल। बट ध्यान दीजिएगा, ये नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। दिस इज सिंथेटिक। हेलो, हेलो। यस सर। समझ में आया? यस सर। Understood. ये सर Yes. सर ये कौन सी डेट की है? क्या बेटा?
हेलो, कौन सा डेट का सेगमेंट है सर ये? बेटा मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, क्यों, क्या, कौन सा, सर डेट पूछ रहा है, कौन सी डेट का डीवीपी है? वो कौन सी डेट? बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? सर 9 जून की। सर वो पूछ रहे कि डीपीपी कौन सी असाइनमेंट तब तक होगी ना, असाइनमेंट देखो आप, सेकंड चैप्टर का पहला असाइनमेंट है ये। आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कौन से डेट की है, मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, आपके सारे असाइनमेंट होने चाहिए। ठीक है, आई थॉट तुम नोबेलियम का आविष्कार का डेट पूछ रहे हो। चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिका एंड सिलिकॉन। ये भी क्या है? एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। सिलिका क्या होता है? SiO2। ये क्या हो गया? कंपाउंड है। अग्रीड? कंपाउंड। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर ये S1O2 है कि SiO2 है? क्या बेटा? सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये SiO2 है या फिर S1O2 है? बेटा SI है, आई है बेटा ये। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो सर। इसको आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो। ओके सर। ओके सर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को समझ में आया क्वेश्चन ये? यस सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा कंपाउंड है? क्वेश्चन इज दिस। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा कंपाउंड है। चलिए एयर की बात करें। एयर क्या है? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। Homogeneous. मिल्क क्या है? मिल्क इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आयोडीन क्या है? एलिमेंट है। वाटर क्या है? H2O होता है, यही तो है। सर मिल्क हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्यों है? क्या बेटा? सर मिल्क हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्यों है? बेटा मिल्क इज अ काइंड ऑफ इमल्शन, ठीक है, इसको आप कॉलॉइड में पढ़ते हो। मिल्क की तरह कॉलॉइड होता है, तो ये आपको लगेगा ये होमोजीनियस है, बट ये होता हेट्रोजीनियस है। ओके सर। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। यस सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following can be classified as per pure substance? इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस हो सकता है? क्या मिल्क प्योर सब्सटेंस है? नो No, सर। क्या हम सभी मिल्क को प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं? नो सर। नो सर। No, sir. There are lots of substance which are present there. ठीक है? सर की आवाजें कट रही है। हेलो, am I audible now? yes sir, you are audible. Yes, sir. You are audible. बेटा बाकी बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, तुम्हें कैसे हो रही है दिक्कत? तो पिता ट्रांजिशन मेटल जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं। उन्हें ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं
क्योंकि वो मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे फेस को दर्शाता है, इसलिए हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। बाकी आवाज आ रही है मेरी सही? सर बीच बीच में बाकी डिस्टर्बेंस आवाज आ रही है? थोड़ा। बेटा कौन बोल रहा है ये? बेटा आपकी खुद की आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। सर मैं कह रहा हूँ बीच बीच में थोड़ी सी अभी वो आ रही थी, पता नहीं कहाँ की आवाज आ रही थी। ऐसी जगह बैठिए, सुनिए, आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। आपके नेट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखिए एक बच्चा बोल रहा है, इसका मतलब उसके आपके पर्सनल फोन में दिक्कत है। अगर मुझे सारे बच्चे बोलेंगे तो मेरे नेटवर्क में दिक्कत है, तो मेरे फोन में दिक्कत है। बच्चों, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. सर आपकी Clear. तरफ से Yes, कोई sir. इशू नहीं है सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। बेटा जो भी हो, जिसको भी दिक्कत आ रही है, छत पे बैठ जाओ बेटा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? छत पे बैठ के पढ़ो, ठंडी ठंडी हवा खाओ। कमरे में कई बार होता है नेटवर्क नहीं आता, आप लोगों के लिए मैं भी छत वाले कमरे में बैठ के आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ, ताकि नेटवर्क की कनेक्टिविटी मुझे भी अच्छी मिले आप लोगों के लिए। तो आई एम ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग फॉर यू ऑल गाइस, सो यू ऑल्सो हैव टू पुट लिटिल बिट एफर्ट्स, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। We can't do anything except compromising with our comfort and striking back with the more force as compared to the force which we were putting earlier. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। सी वाटर ये भी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। कास्ट आयरन क्या होता है? एक तरह से बेटा ये आयरन और कार्बन का अलॉय होता है। क्या सर? कास्ट आयरन जो होता है ये आयरन और कार्बन का अलॉय होता है, ठीक है? यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज मोर देन 2%, ठीक है? इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होता है। अंडरस्टूड? तो आप एक चीज बताओ, क्या अलॉय प्योर हो सकता है? नहीं, ये तो मिक्सचर हुआ। No, sir. ठीक है, तो आइस क्या है? H2O प्योर कंपाउंड, और कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर Pure सब्सटेंस। substances. Am I right? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. I can see all of you can understand these question. चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। आंसर सभी को दिख रहा है, बट दिमाग लगाना है, सोचना है, ठीक है? चलिए ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि आपको आंसर नहीं पता, ठीक है? अब बताइए, क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हैं? Yes, sir. अभी आपको आंसर पता है, आपने सॉल्व किया, वो तब मालूम पड़ गया होगा। लेकिन हमारा पर्पस आंसर जानना नहीं है, हमारा पर्पस है लर्न करना। और एक बार आपने सीख लिया ना, तो एनटीएससी, जेएसटीएससी, आईआईटी, जेई, नीट, नेट, गेट, लाइफ में कोई भी एग्जाम दोगे ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो these questions are just a way to develop your application approach which is required for competitive examination, ठीक है? पर्पस तो यही है बेटा आपके इन क्वेश्चंस का। तो अभी आप देखो सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप देना स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। पर्पस क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाना। सीबीएसई समझ गया है कि जो हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव देम गुड कॉलेज। इससे गुड कॉलेज नहीं मिल रहा है। गुड कॉलेज कैसे मिलेगा? ये एग्जाम क्लियर करके, और ये क्लियर नहीं हुआ तो नो गुड कॉलेज, नो गुड कॉलेज, नो गुड लर्निंग, नो गुड लर्निंग, तो नो गुड जॉब, ठीक है? लर्न करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है? अच्छी जगह से सीखोगे, अच्छे टीचर से पढ़ोगे, तो आप भी अच्छे इंसान बनोगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव अप्रोच जनरेट हो।
अगर मैं बात करूं नीट की ना, नीट एग्जाम की, ठीक है, तो उसमें अराउंड वो 720 मार्क्स का होता है पेपर। 180 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान सुनना, 180 सवाल होते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? Yes, 1 मिनट में सवाल सॉल्व करना आप सभी को। सिंसियरिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। देखो हमारा पर्पस आप सभी को सिर्फ और सिर्फ जीएसटीसी क्लियर करवाना नहीं है, हमारा पर्पस ये भी है कि आप सभी को हम फ्यूचर डॉक्टर्स और फ्यूचर इंजीनियर्स की तरह सोचना भी सिखाएं, और उसका तरीका यही है एमसीक्यू। हमारा पूरा पर्पस यही है कि आप सभी को अच्छे कॉलेजेस के लिए आज से तैयार करें। इसी पर्पस को, इसी ऑब्जेक्टिव को माइंडसेट बना करके हम आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोगों के अप्रोच डेवलप हो। अभी आप सभी के सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, एयर, अमोनिया, मर्क्यूरी, ऑक्सीजन। अब बहुत बच्चे सोचेंगे अरे दी तो मुझे पता ही है, मैं बोल दूंगा अमोनिया। पर आपको सोचना है कि क्या एयर कंपाउंड है? नहीं, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ये कैसे कंपाउंड हो सकता है? फिर अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, और ये कंपाउंड हो गया, यानी कि ये कंपाउंड है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का फॉर्मूला Hg होता है, और सर ने पढ़ाया था कि मर्क्यूरी एक मेटल है, ये क्या हो गया? एलिमेंट, ये कंपाउंड तो नहीं होगा। ऑक्सीजन भी क्या है? ये भी एक एलिमेंट है, ये भी कंपाउंड नहीं है। आपको सर यहाँ पे 2 एटम है पर सेम टाइप ऑफ एटम है, और सेम टाइप ऑफ एटम होने के कारण ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, स्टिल इट्स एलिमेंट। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज Ammonia. सॉरी NH3. किस किस बच्चे को ये अप्रोच समझ में आई कि सोचना कैसे है? वुड लाइक टू सी योर चैट्स, वुड लाइक टू सी कि क्या आप सभी सोच पाए जिस तरह से मैंने आपको बताया। चैट बॉक्स में अच्छा रहेगा, मुझे आप सही बताएं। दैट्स गुड। दैट्स नाइस। Okay, that's good, that's good, very nice। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को समझ में भी आ रहा है और आप सभी को मजा भी आ रहा है। 10th क्वेश्चन, when a mixture of iron powder and sulfur powder is heated strongly to form iron sulfide, then heat energy is। अच्छा, आप सभी को याद होगा कि था क्या, आपने आयरन को सल्फर में मिक्स किया और हीट किया। ये सिंबल जो होता है हीट का होता है। साथ साथ चीजें भी सिखाऊंगा, इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो बना आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड का ये फॉर्मूला होता है, प्लस हीट भी रिलीज हुई। समझिएगा, पहले आपने हीट दिया, पहले आपने इस रिएक्शन को हीट दिया, और जैसे ही रिएक्ट हुआ तो इसने हीट भी निकाला, यानी कि पहले हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और फिर रिलीज होगी। समझ में आया सभी को? सर एक बार सर ये वाला समझ गया है। ये ओके, नो डाउट, नो डाउट। हम इसको दोबारा करेंगे। Okay, so try to understand this question one more time. You need to understand the words given here. He is saying that when a mixture of iron powder and sulfur powder is heated strongly, यानी कि आयरन पाउडर यानी कि Fe, आयरन का फॉर्मूला होता है, सल्फर पाउडर यानी कि S, सल्फर का फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है इसको हीट किया तो मिलेगा आयरन सल्फाइड, ठीक है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ऐसे कहीं से तुक्का बना के नहीं आएगा।
आपको एक्सपेरिमेंट जब भी करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनिशियली तो आपने हीट दिया, लेकिन जब रिएक्शन होगी ना तो ये हीट रिलीज भी करेगा, यानी कि दोनों हो रहा है ना, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है और यहाँ पे रिलीज भी हो रही है। सर इससे हम कूल थोड़ी ना कर रहे, तो ये रिलीज क्यों करेगा? बेटा देखो होता क्या है, समझिएगा, केमिकल रिएक्शंस होती है ना तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं। अब पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और जो नए बॉन्ड बनते हैं ना, Fe और सल्फर के बीच में जो नया बॉन्ड बना होगा ना, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। समझ रहे हो? मैं समझाता हूं। तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए हैं, तुम तब ज्यादा मेंटली स्टेबल रहोगे या अभी ज्यादा स्टेबल हो? अभी सर तो अभी रहेगा। अभी ज्यादा stable हो? अभी अच्छा ये बताओ, मेरे पास अगर इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं डरूंगा ना कि भाई ऐसा ना हो मेरी चोरी हो जाए पैसे इतने सारे। मानते हो इस बात को? यस सर। यस सर। एक तरह का हमारे माइंड में मेंटल इनसिक्योरिटी हो गई हमें कि इतना सारा पैसा आ गया मेरे पास, कोई चुराना ना मेरे से। लेकिन जैसे ही वो पैसा हट जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, मेंटली स्टेबल हो जाएंगे, बोलेगा चलो ठीक है जी, चलो ये तो पैसे की बात कर दी हमने, थोड़ा सा हम और टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, एक आयरन का रॉड लिया, ठीक है, इसको हीट करना स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर पहले था 25 डिग्री सेल्सियस, आपने इसको पहुंचा दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये स्टेबल कहां पे होगा, इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर पे? 25 इस टेम्परेचर पे आकर के ये रुक जाएगा क्या, ये वापस जाएगा? जाएगा ना? यस सर, वापस जाएगा यस सर क्योंकि वो हीट बाहर जाएगा। निकलेगा। देखिए बेटा, ये आयरन के पार्टिकल्स हैं, ये सल्फर के पार्टिकल्स हैं। अब क्या इनके बीच रिएक्शन करानी, आपस में कोलाइड होंगे ये, ठीक है, तो इनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे सारे। अब एक चीज बताओ, मान लो तुमने अपने दोस्त का हाथ कस के पकड़ा हुआ है और मैं उस हाथ को छुड़ाना चाहूं तो मेरी एनर्जी लगेगी ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो वही एनर्जी लगा रहा हूं बेटा, यहां मैंने एनर्जी लगाई, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो इस एनर्जी को मैंने तोड़ा, वो हो गई एब्जॉर्ब। वो एनर्जी कहां से आई, मैंने दी थी, ये एनर्जी मैंने दी इनको तोड़ने के लिए, इनके बीच के बॉन्ड को। अब क्या हुआ, अब एक आयरन का पार्टिकल और एक सल्फर के पार्टिकल के बीच में बॉन्ड बना, पर जब ये बॉन्ड बनेगा ना, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी समझिएगा, आपने जो पहले एनर्जी दी इन दोनों को, उसके कारण क्या हुआ, इनकी एनर्जी बढ़ गई ना। मान लो पहले 5 जूल थी, आपने बढ़ा के कितनी कर दी, 500 जूल कर दी। ये 10 जूल था, आपने 1000 जूल कर दी। अब एक चीज बताओ, कोई भी सिस्टम ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा, हायर एनर्जी स्टेट पे या लोअर एनर्जी स्टेट पे? आप बताओ। लोअर एनर्जी। हायर पे तो एनर्जी रिड्यूस करते रहेगा। वही तो हो रहा है यहाँ पे, कि जब ये आपस से कंबाइन कर रहे हैं तो अपनी जो एक्सेस एनर्जी है जो इन्हें अनस्टेबल कर रही है वो रिलीज कर देते हैं। वही तो मैंने समझाया यहाँ पे, आयरन और सल्फर जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो पहले एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और फिर जब वो आपस में कंबाइन करेंगे ना तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने गेन करी है पहले वो रिलीज कर देंगे। तो पहले एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, फिर रिलीज हो गई। मतलब सिर्फ जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उतनी बाद में बाहर भी निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। कितनी नहीं बेटा, कितनी एब्जॉर्ब हुई कितनी रिलीज हुई, दैट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल केस। समझ में आया? सर एक बार सर एब्जॉर्ब वाला और केस समझा दो सर, एब्जॉर्ब केस। बेटा मैंने सिंपल सी बात बोली है, बहुत सिंपल सी बात है। बात सिंपल सी ये है कि
ये आपके आयरन के पार्टिकल्स हैं, और ये आपके सल्फर के पार्टिकल्स हैं। आप चाहते हो कि ये आपस में रिएक्ट हो, यानी कि एक दूसरे से कोलाइड हो। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे ना, तो इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से टूटेंगे। एक दूसरे से अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी में दे रहा हूं, पर वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे ना। अभी तक तो ये पढ़ाता आया हूं ना, किसी मैटर को हीट करोगे तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, यही तो बोलते हैं आप सबसे। अग्रीड? तो जब ये पार्टिकल, आप समझिएगा, अब ये पार्टिकल टूट के अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग तो हो गए हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत हाई है इनके मुकाबले। इनिशियली के मुकाबले बहुत एनर्जी हाई है इसकी। अब जो एक्सेस एनर्जी वो ये दोनों रिलीज कर देंगे और आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यही तो बोल रहा हूं मैं। सर किसके मुकाबले? पुराने के मुकाबले? हाँ जी, पुराने एनर्जी ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज कर देंगे। आ गया सर। बाकी यस सर, क्लियर। चलिए यस सर, क्लियर। सर क्लियर। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर आपने अभी एक वर्ड बोला था लैक्टिक एनर्जी करके कुछ। लैक्टिक नहीं, लैटिस एनर्जी। जो यस सर, आप बता दीजिए प्लीज। लैटिस का मतलब होता है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, और उस अरेंजमेंट को तोड़ने के जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। मैं आपको लैटिस दिखाता हूँ क्या लैटिस का मतलब होता क्या है। सर सॉलिड टू लिक्विड होने में भी यही एनर्जी चाहिए होती है? उसको हमने बेटा अलग से नाम दिया हुआ है। हमने इसको बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस इज अ वेरी नाइस इमेज। चलिए यहाँ देखिए, ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना, ये इसी को बोलते हैं लैटिस। इसको तोड़ा, देखो टूटा है, सारे निकल गए बाहर, निकल के दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, सारे टूट गए, सीएल अलग हो गया, Na अलग हो गया, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व है इसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अंडरस्टूड? सर कैन यू रिपीट? Yes, sir. बेटा मैंने सिंपल सी बात बोली है कि आप मान लो NaCl की बात करूं मैं, नमक की, नमक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्यूबिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आप इन पार्टिकल्स को अलग अलग करोगे, तोड़ोगे ना, इस तरह टूटेंगे, सारे अलग अलग हो जाएंगे, Na अलग, Na+ अलग, Cl नेगेटिव अलग। ठीक है, इसको करने में, ये जो करने में एनर्जी लगेगी उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यस सर, क्लियर। क्लियर है? तो सर इसका मतलब एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक अप अ कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्या बेटा? एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी ना? यो, यस, ओके सर। सभी को समझ में आया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते। The element which normally exists in the liquid state: bromine, iodine, mercury, chlorine, iodine, mercury, bromine, mercury। आप बताइए। Bromine, mercury. सर ब्रोमीन और मर्क्यूरी, क्योंकि ब्रोमीन नॉन मेटल्स की साइड, मर्क्यूरी मेटल की साइड से। बने हुए हैं, अगर आप सभी ने नोट्स बनाए हैं ढंग से मेरे, लिक्विड स्टेट में आंसर विल बी bromine होता है। मेटल में क्या होता है? ब्रोमीन।
और नॉन मेटल में क्या होता है? सर ये उल्टा लिखा। सर मेटल में आपने उल्टा सर लिख मेटल में मरकरी होता है ना? सही कर दिया भाई, सही कर दिया, देखो ध्यान से देखो, सही कर दिया। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। Oh, sir. No sir, no doubts. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ब्रोमीन का यूज कहाँ कहाँ होता है? क्या? सर ब्रोमीन का यूज कहाँ कहाँ होता है? सर ब्रोमीन का यूज। ब्रोमीन का यूज कहाँ होता है? बहुत तरह के यूजेस है बेटा ब्रोमीन के। सर ब्रोमीन तो गैशियस फॉर्म में भी होता है, दोनों मतलब सेम होते आप हैं। ब्रोमीन का यूज किस फील्ड में पूछ रहे हो, जल्दी बताओ। आप किस फील्ड में जाना चाहते हो? एग्रीकल्चरल फील्ड में, या हमारे डेली लाइफ में, या फिर बात करूं उसकी मेडिसिनल लाइफ की बात करूं, किसकी फील्ड में बताऊं आपको? सर डेली लाइफ में। देखो बेटा, डेली लाइफ की बात करूं तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो इसे ब्रोमीन की मदद से कंपाउंड तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, उसको यूज करते हैं। ठीक है, इससे डाइस बनते हैं। ठीक है, बहुत तरह के डाइस काम में आते हैं, कपड़ों की कलरिंग होती है उनसे। उसके बाद करूं अगर मैं दवाइयों की, तो ब्रोमीन की मदद से दवाइयां भी बन सकती है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट which is not common between the compounds called baking soda and soda ash। बहुत से कंपाउंड है और जेएसटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। देयर इज अ चांसेस कि जेएसटीसी में ये क्वेश्चन आएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है? NaCO3 NaHCO3. सोडा Sodium ऐश। bicarbonate. Na2CO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। इसका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, these are the chemical names of these compounds। अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखना, इसमें और इसमें क्या ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, नहीं है। हाइड्रोजन सर। क्या? सर हाइड्रोजन है इज क्या? नॉट कॉमन। तो हाइड्रोजन इज नॉट कॉमन, हाइड्रोजन इज राइट आंसर। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। No sir. सर सर यस। सर ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं इनमें ओ कैपिटल है या फिर स्मॉल है? बड़ा ओ कैपिटल है, आपको लग रहा होगा मैं इसको और ढंग से लिखूं। सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है? ए स्मॉल 2 सी कैपिटल ओ कैपिटल 3, ये फॉर्मूला। सिमिलरली एन कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल ओ कैपिटल 3 ऐसे। सर सोडा ऐश क्या होता है? बेकिंग पाउडर। हाँ बेटा, मैं बहुत से क्वेश्चन पूछा था, सोडा ऐश क्या होता है? What is the difference in between baking soda and baking powder? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दूं तो बनेगा Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। ठीक है, ऐसी कुछ नाम और बता देता हूं, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, मालूम पड़ गया आपको। अगर इसी बेकिंग सोडा में मैं सिट्रिक एसिड और या फिर टार्टारिक एसिड मिक्स कर दूं तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बेकिंग पाउडर। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बेकिंग पाउडर। एक और लीजिए, CaOCl2, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर।
याद रहेंगे ये नाम? कॉल लीजिए CaSO4.2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम, और CaSO4.H2O और यहाँ पे ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? किसी को पता है इसका नाम? POP. वेरी गुड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सारे बच्चे इन नाम को लिखेंगे अपनी कॉपी में अभी के अभी। Please write name of these compounds in a copy. सिट्रिक एसिड के सर आपने नीचे क्या लिखा है? राइटिंग समझ नहीं आ रही। सर आपने सिट्रिक एसिड के नीचे क्या लिखा है? सर बट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है सर वो 1.5 होता है, 2 नहीं होता। नहीं बेटा, सही फॉर्मूला ये है जो मैं लिखा है ना, सही फॉर्मूला ये है बेसिकली। जो एक बार नोट करो फिर समझाता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो सारा। सर डन। सर सिट्रिक एसिड के नीचे क्या लिखा है? टॉर्टेनिक एसिड। टार्टेरिक, टार्टेरिक। सर डन। टार्टेरिक एसिड। सर ब्लीचिंग पाउडर में फॉर्मूला क्या लिखा है? CaO। क्या बेटा? सर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या लिखा है? CaO। CaCl2। तो उसमें सर A और Cl स्मॉल में है ना? क्या बेटा? उसमें A और Cl स्मॉल में है ना ब्लीचिंग पाउडर में? A और Cl स्मॉल में है। नहीं, C कैपिटल में बेटा, C कैपिटल में है। सर इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन भी होता है ना? हाँ बेटा, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, तभी तो उसकी स्मेल आती है वैसी। ये फॉर्मूला उसका। सर गिब्सम में CaSO कैपिटल में है। क्या बेटा? बेकिंग पाउडर। सर गिब्सम में SO कैपिटल में है। हाँ बेटा, H कैपिटल में, जिप्सम में ना H कैपिटल है। सर जिप्सम में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या POP में डिफरेंस? A को छोड़ के बाकी सब कैपिटल में है। सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है? दोनों का वर्क तो सेम ही होगा ना? बेटे वो नोट कर ले, समझाता हूँ। पहले एक नोट करो जो लिखा हुआ है, फिर आपके क्वेश्चन क्लियर करूंगा मैं। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस में SO कैपिटल में है। कहाँ है प्लस? S कहाँ है? हाँ, S कैपिटल में बेटा, S फॉर सल्फर। सर O। S के बाद O भी कैपिटल में है। सर सोडा एस में Na2CO जो है वो कैपिटल में है। हाँ बेटा। सर गिब्सम में ये 2H2 प्लस में है या फिर ऐसे उसके साथ ही है? जिप्सम में और POP में स्मॉल a है, बाकी सब कैपिटल है। सर आपने बीच में वो डॉट लगाया है फिर वो साथ में ही वो है? डॉट है बेटा, डॉट है, डॉट। वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है वहां पे। सर डन।
रब कर दूं? नो Yes. सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, आप बताइए क्या क्या डाउट है आप सभी के। पहला क्वेश्चन, सर सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फर्क क्या होता है? बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? देखो बेटा, बेकिंग सोडा सिर्फ और सिर्फ NaHCO3 है, ये है आपका बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग पाउडर की बात करूं मैं अगर, तो वो दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है, NaCO3 प्लस टार्टेरिक एसिड। कोई भी एडिबल एसिड, ऐसा एसिड आप जो खा सकते हो, ठीक है। इसको यूज करके आप केक बनाते हो, लेकिन इसको यूज करके आप केक नहीं बना सकते, केक कड़वा बनेगा। सर पर दोनों ही यूज होते हैं। सर नहीं बेटा, खाना बेकिंग बनाने के लिए सोडा दोनों यूज होते हैं। बेकिंग सोडा इज नॉट यूज्ड टू बेक केक। यस सर। सर केक में तो नहीं होता, लेकिन दूसरी चीजों में होता है, वो तो खड़े नहीं होता। क्या बेटा? सर मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, फिर वो भी यूज होता ही है, वो बेकिंग पाउडर ही तो है। मीठा सोडा आप छोले और चने में डालते हो, केक में नहीं डालते हो। सर फिर वो तो कड़वे नहीं होते। हाँ सर, कड़वे नहीं होते। बेटे वहां पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना आपकी सब्जी में। छोले में एक आपका बेकिंग सोडा थोड़ा होता है, सर हल्दी छोले में नहीं, केक में होता भी। है। क्या बेटा? सर छोले, केक, रसगुल्ले सब में डलता है बेकिंग सोडा तो। बेटा ये चीज तो मैंने नहीं सुना कि रसगुल्ले में बेकिंग सोडा डलता है। नो सर, नहीं डलता रसगुल्ले में। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया शायद। यस सर। नीरज ने की है। ऑडिबल। हु इज दिस? नीरज शर्मा। बेटा पढ़ने आया, मस्करी करने आया यहाँ पे? सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। चलिए, तो बेटा ये ऐसा नहीं है बेकिंग सोडा हर जगह नहीं डलता। खाने को जल्दी पकाने के लिए बेकिंग सोडा डाल जाता है, ताकि अपना वो छोले जो है फूल जाए, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। एक बच्चे ने बोला कि सर आपने जो लिखा फॉर्मूला वो गलत है, ये सही फॉर्मूला है। अब बेटा तुम खुद सोचो, क्या आधा मॉलिक्यूल होगा पानी का? आधा मतलब कैसे, काट के नारियल है क्या, तरबूज है? समझिएगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट शेयर करते हैं, तो इसका आधा कंट्रीब्यूशन इसको, आधा कंट्रीब्यूशन इसको। ये फॉर्मूला तो सही है, लेकिन लॉजिकली सही नहीं है। तो लॉजिकली क्या सही होगा? 2CaSO4.H2O। तो एग्जाम में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? बेटा ब्लीचिंग पाउडर में हम कैसे बनाते हैं? हम लेते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो मिलता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O, ठीक है। बेटा ब्लीचिंग पाउडर इज जस्ट अ अरेंजमेंट
टू स्टोर क्लोरीन। और जब भी ड्राई क्लीनिंग करवानी होती ना, तो ब्लीचिंग पाउडर में हम एसिड मिक्स करते हैं और मिलता है सॉल्ट, वाटर और क्लोरीन, और ये क्लोरीन अपने कपड़े को ब्लीच कर देता है। सर सर जो 2CaSO4H2O लिखा है वो किसका फॉर्मूला था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है, सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये पीओपी वाला पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा सही फॉर्मूला तो यही है, इज द राइट फॉर्मूला। ये लॉजिकली सही नहीं है, चल जाएगा लेकिन बेटर ये है। सर ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला फॉर्मूला आप एक और बार समझा दीजिए। क्या बेटा? सर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट है, सर ये कपड़ों में कैसे? हाँ, क्या हुआ इसमें? सर ये आप ये वाला फॉर्म, आप चैट पे लिखो बेटा, क्या लिख रहे हो? राइट इट ऑन चैट, आई कैन नॉट हियर यू। सर म्यूट कर दिया उसे। चैट पे लिखिए। Who is this? नीरज शर्मा? Excuse me, sir. It was done by me by mistake. Hello? Yes? Sir, it was done by me by mistake. So I'm sorry for that. Who is speaking right now? Sir, me Divyansh Khandelwal. You're not audible. Who is this? Hello? Sir, Divyansh Khandelwal. हाँ बेटा, क्या डाउट पूछ रहे थे? सर डाउट नहीं पूछा था, मैं बोल रहा था कि मेरे से म्यूट हो गया था ओवर आरव सिंह। बेटा एक बार हो गया, दो बार तुम करोगे। ध्यान रखिए इस चीज का कि टीचर म्यूट हो गया तो फिर पढ़ाएगा कौन? सर इसने आपको नहीं करा था, आपको नीरज शर्मा ने करा था। यस सर, आपको नीरज शर्मा ने किया था। And who is this child? I need to find out this child. सर मैंने अपना डाउट चैट में लिख दिया, आप देख लीजिए। हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ। चलिए डाउट देख लेते बच्चे का। प्लीज एक्सप्लेन केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बेटा समझ लेते हैं इसको। बेटा मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, जब भी मुझे इसे यूज करना है तो इसकी रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊंगा, ठीक है? तो क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड क्लोरीन। दिस क्लोरीन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है ना, इस क्लोरीन को स्टोर करने का एक जरिया है। दैट्स इट। समझ में आया? सर ब्लीचिंग पाउडर में Yes, sir, क्लोरीन के understand. साथ क्या होता है? क्या बेटा? क्या बोल रहे हो? प्लीज स्पीक लाउडर बेटा, जोर से बोलिए। सर ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन के साथ और क्या होता है? क्लोरीन के साथ क्या होता है? बेटा चैट बॉक्स लिखो, अपना डाउट चैट बॉक्स में लिखो बेटा। आप लोग क्या बोल रहे हो? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो भी डाउट पूछता है चैट पे लिखो, मैं चैट देख रहा हूं। सर मैं बोल रहा था कि ब्लीचिंग पाउडर में वो बस क्लोरीन को स्टोर करके रखता है।
You need to write it on chat. But how you did miss? गर्व छोड़ दीजिए बेटा, उस बात को छोड़ दीजिए. ओके, ब्लीचिंग पाउडर दोबारा समझाना है आपको. जो बताया जाए बेटा वो कीजिए. आप 15-20 सेकंड का म्यूट हॉल्ट लेकर के आप दोबारा वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं. अगर मैं कह रहा हूं कि आप ऑडिबल नहीं हो, यू नीड टू प्रॉम्प्टली एक्ट ऑन दैट. यू नीड टू राइट इट ऑन चैट अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए. अगर ऑडिबल नहीं हो आप मुझे, तो आपको ऑटोमेटिकली चैट पे लिखना है फटाफट. ऑडिबल नहीं हो तो चैट यूज करो फटाफट. टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. बेटा मैंने समझाया है आप सभी को ब्लीचिंग पाउडर का. ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर जब क्लोरीन गैस पास कराते हो लाइम वाटर, जिसको लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब बनता ब्लीचिंग पाउडर. जब इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज करना ना मैं, तो हम ब्लीचिंग पाउडर में एसिड डालते हैं, तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट, वाटर और क्लोरीन. और यही क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है और कपड़ों के रंग को उड़ा देता है. आई होप समझ में आया. यस सर, क्लियर. Yes, sir. Yes, sir, clear. चैट बॉक्स लिख दे मैं डाउट अपना. कौन डाउट पूछा था? कौन सा बच्चा डाउट पूछता था बेटा? सर सुप्रीता जहाँ से नाम लिखा हुआ है. नहीं, कोई लड़का डाउट पूछा था. देवांश आप पूछे डाउट? नो सर. सर सुप्रीता झा ने पूछा था. नहीं, किसी लड़के की आवाज थी. सो लव्या. लव्य बेटा क्लियर है? लव्य क्या डाउट था बेटा? चैट पे लिखो अपने. सर नहीं है अब उनके पास डाउट. चलिए, नो डाउट, तो वी विल मूव फॉरवर्ड. स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में इसको. सर अगर सिर्फ क्लोरीन ही ब्लीचिंग एजेंट है तो सर हम खाली क्लोरीन से ब्लीचिंग नहीं कर सकते? बेटा क्लोरीन को स्टोर नहीं कर सकते आप. ऐसा नहीं है क्लोरीन आप पुड़िया में भर के बेच दोगे, है ना? यस सर. को बेचने के लिए आपको स्टोर करना पड़ेगा ताकि वो लंबे समय तक टिके. ओके सर. नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, I noted down. चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर. कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ये कह रहा है कि कार्बन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मिला कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होंगी, क्या वो कार्बन सिमिलर होगी? नहीं. क्या वो ऑक्सीजन सिमिलर होगी? नहीं. आप सभी को पढ़ाया गया है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है. क्या दोनों से होगी? बिल्कुल भी नहीं. दोनों से डिफरेंट होने वाली है. आपको मैंने बताया था कि कंपाउंड्स डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट. जिन चीजों से कंपाउंड बनता है, कंपाउंड उनकी प्रॉपर्टी ही शो नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर में हाइड्रोजन आप फ्यूल का यूज करते हो, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, लेकिन वाटर ना तो फ्यूल की तरह यूज होता है
ना तो वो कंबशन का सपोर्टर है। सर एक बार दोबारा समझाना ये वाला। बेटा मैंने सिंपल सी बात बताई है। मैंने बोला है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है ना, कंपाउंड कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट से मैच नहीं होती है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। तो वही कह रहा है, ये टोटली डिफरेंट होगी अपने कंस्टिट्यूएंट से। यहाँ कंस्टिट्यूएंट क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो इनसे बिल्कुल अलग होने वाली है। इसका मतलब ऑप्शन सी। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, पता किसी को? यस सर, पता है। बताओ। यस सर, पता सर है। HCl और HNO3 उसमें कॉन्सेंट्रेटेड कंबाइंड HNO3 होते और हैं। HCl। HNO3 और HCl 3:1 के रेशियो में होते हैं। और सर ये गोल्ड को मेल्ट करने में काम आते हैं। वन पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड, थर्ड पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 ml एक्वा रिजिया है तो 100 ml एक्वा रिजिया में 75 ml क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और 25 ml क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अभी बोल रहा है एक्वा रिजिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो इसमें से कौन सा डिसॉल्व कर सकता है? पहला प्लेटिनम, दूसरा गोल्ड, तीसरा बोथ ए एंड बी, नीदर ए नीदर बी। तो बोथ आएगा सी। बोथ ए एंड बी। ये गोल्ड और सर एक प्लेटिनम, बार उनके कंसंट्रेशन वाला दिखा दो। गोल्ड प्लेटिनम दोनों को डिसॉल्व कर सकता है। बेटा अभी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलो। सर एक बार जो आपने कंसंट्रेशन लिखी थी वो दिखा दो। ठीक है दिखाता हूँ। सर ये HNO3 क्या है? सर थोड़ा जूम कर दीजिए। यहाँ जो HNO3 है उसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर रीजेंट्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा इट इज वन ऑफ द फ्यू रीजेंट्स। रीजेंट्स क्या होता है सर? फिर से बोलो। सर मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ। देखो मैं चैट सर बॉक्स। रीजेंट्स का मतलब पूछ। कैन यू एक्सप्लेन कंपाउंड एंड एलिमेंट? राम गौरव जी आपको मैंने बताया है कंपाउंड दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। ठीक है, कंपाउंड। एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से ही मिलके बनता है। मोहम्मद फरहान, जस्ट लाइक वाटर हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज इट। मैंने ये भी बोला, यही बोला है बेटा। रिएजेंट काइंड ऑफ कह सकते हो, कोई सब्सटेंस है, कोई मिक्सचर है जिसको आप केमिकल एनालिसिस में या किसी तरह के रिएक्शंस में यूज करते हो, उसी को हम बोलते हैं रिएजेंट। समझ में आया? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? मैंने बोला है कि रिएजेंट वो सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको आप तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हो, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, फैंटन्स रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट, ग्रिनार्ड रिएजेंट।
वो तरह तरह का रिएजेंट है। इससे हम इन सभी को हम केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। 12th क्लास में पढ़ोगे इनके बारे में। एक्वा रिजिया भी रिएजेंट है ना सर? क्या बेटा? एक्वा रिजिया भी एक रिएजेंट है ना सर? कह सकते हो। जो आपके एसिड्स हैं वो भी एक तरह का रिएजेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिएजेंट है, परक्लोरिक एसिड भी रिएजेंट है। सब तरह ये सारे एसिड रिएजेंट ही है। रिएक्ट तो कर ही रहे हैं ना ये। यस सर। आप कई बार रिएक्टेंट को हम रिएजेंट ही बोल देते हैं कई बार। तो आप रिएक्टेंट की जगह रिएजेंट बोल दोगे चल जाएगा। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएजेंट हो गए आसान भाषा में। जो भी सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो रिएजेंट है। आया समझ में? यस सर। Yes, सर sir. प्लैटिनम और गोल्ड तो 2 एग्जांपल्स हैं सर, और भी ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस जो इसके साथ वो डिसॉल्व हो जाते हैं? क्या बेटा? सर प्लैटिनम और गोल्ड तो इसमें दे रखा है सर, और भी सब्सटेंसेस होते हैं ऐसे ही? ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब लीस्ट रिएक्टिव को डिसॉल्व कर दिया फिर तो बाकी तो हो ही जाएंगे ना। यस सर। सबसे कम रिएक्टिव है, अगर वो डिसॉल्व हो सकते हैं बाकी हो ही जाएंगे। बाकी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, कुछ ऐसा निकल जाए जो नहीं हो रहा है डिसॉल्व, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है इनसे। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करिए। आप सभी के पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में मैं आप सभी से पूछूंगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है। दिमाग लगाइए। सर थर्ड। सर फोर्थ। सर फोर्थ। सर फोर्थ। ओके लेट मी सी। बाकी बच्चों को भी चैट देखनी पड़ेंगे ना मुझे। बाकी बच्चों को क्या कहना है? ओके सभी का 4 आ रहा है। दैट्स गुड। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। दो केमिकल सब्सटेंसेस है एक्स और वाई, आपस में कंबाइन कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं पी। कोई कंपाउंड दे दो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब भी दो चीजें रिएक्ट करेंगी कंपाउंड बनेगा। मतलब एक कंपाउंड तो बनेगा कंफर्म है। कृष्णा ये फालतू के स्माइलीज मत भेजिए, क्लास में बैठे हैं आप। X and Y cannot be broken down into simpler substance by simple chemical reaction। देखिए इस लाइन से आपको एक डेटा मिल रहा है। वो डेटा ये है कि X और Y जो है वो एक एलिमेंट है। तो देख रहे हो बेटा, आपको क्वेश्चन में ही डेटा छुपा छुपा के दिया हुआ है कि X और Y एलिमेंट है और दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो कंपाउंड ही होगा। तो P is a compound, this is confirmed. X and Y is the element, this is also confirmed। ठीक है। और P अगर एक कंपाउंड है तो उसका कॉम्पोजिशन फिक्स होने वाला है। तो 1, 3 and 4 ऑप्शन डी। सर यस सर इसमें बोला है कि वन प्रोडक्ट, लेकिन वन प्रोडक्ट का मतलब तो मिक्सचर भी हो सकता है, कंपाउंड भी, क्योंकि सर अगर देखा जाए। सुनिए, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। बोला हुआ ना, ये कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट पी। इसने बोल दिया तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिंपल केमिकल रिएक्शन, तो वो एलिमेंट हो गए। उसने क्लियरली ये बोल दिया कि एक्स और वाई रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। केमिकल इक्वेशन दिख रही होगी आप सभी को
कैन यू सी द केमिकल इक्वेशन हियर? सर कंपाउंड को तो हम केमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं ना। ये केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर केमिकल कॉम्बिनेशन हो तो पी हमेशा एक कंपाउंड ही होगा। आया समझ सर में? कंपाउंड को तो हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये पूछा नहीं ना इसने भी यहाँ पे केमिकल मेथड से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये उसने पूछा नहीं है। इसको इग्नोर कर दो। आप बस ये देखो कि पी कंपाउंड है या नहीं है, एक्स और वाई एलिमेंट है या नहीं है, ये हो गया। सर लेकिन इसमें ये तो दे रखा है ना, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। अब एक चीज सुनो बेटा, अगर एक्स और वाई को आप फिजिकल और केमिकल दोनों से नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? फिजिकल से भी नहीं हो रहा, केमिकल से भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट है सर। डेफिनेशन बताया था मैंने, एलिमेंट्स को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते एलिमेंट को। मैंने समझाया है आप सभी को। यस सर। यस सर। सर दो अलग अलग कंपाउंड्स आपस में मिलके एक न्यू कंपाउंड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ओके सर। एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराइए तो क्या मिलेगा? H4Cl। यस सर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से NH3 और HCl की रिएक्शन से मुझे क्या मिल रहा है? NH3 क्या है यहाँ पे? अमोनिया। NH3 क्या है? कंपाउंड है ना, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड। यस सर। आपस से कंबाइन क्या दे रहा है? कंपाउंड ही दे रहा है। ओके सर। ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट, 2 मिनट्स। सर अभी आपने तुरंत बोला ना अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने पर बना NH4Cl, और इसमें आपने बोला कि दोनों कंपाउंड्स हैं। सर आपने बोला ना कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के बना NH4Cl, और आपने ये भी बोला कि दोनों कंपाउंड्स हैं। तो सर फिर इसमें भी तो सेकंड नंबर पर लिखा है एक्स एंड वाई आर कंपाउंड्स और थर्ड नंबर पे लिखा है एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स। बेटा वहां पे आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो ना, उसने लिखा है कि एक्स और वाई को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। वहां क्वेश्चन में बोला हुआ ये बात कि आप एक्स और वाई को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जब इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये एलिमेंट है, आप इन्हें ब्रेक कर सकते हो। आप HCl को H2 और Cl2 ब्रेक कर सकते हो, उसको आप N2 और H2 ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट हो गए और ये कंपाउंड है। ओके सर, ओके। करिए। सर डन। सर डन। टाइम अप। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two substances A and B were made to react to form third substance A to B.
ये कह रहा है कि 2A की रिएक्शन कराई B से तो मिला मुझे A2B, ये कंपाउंड बना। Which of the following statement concerning this reaction are incorrect? इसमें कौन सा incorrect है ये कह रहा है। The product A to B shows the property of substance A and B। अच्छा अच्छी बताइए, क्या ये इनकी प्रॉपर्टी दिखाएगा? कभी नहीं, कंपाउंड है ना। No, sir. यस नो सर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। अगर ये पॉइंट इनकरेक्ट है तो मेरे को तो इनकरेक्ट पॉइंट ही चूज करना है, यानी कि सही हो गया हमारा पहला पॉइंट सही है। द प्रोडक्ट विल हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, हाँ जी इसका फिक्स कंपोजिशन होगा, पर मुझे तो गलत पॉइंट चाहिए, तो ये हमें इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये पॉइंट सही है पर आंसर में ये नहीं आएगा। देखिए ये सोच जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे गलत ऑप्शंस पूछ रहा है, कौन से गलत ऑप्शंस हैं। थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, क्या इसको मैं कंपाउंड नहीं कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, कंपाउंड ही तो है ये। कंपाउंड ही है सर। ये पॉइंट भी गलत है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज ये एलिमेंट है, नहीं ये तो कंपाउंड है, ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 सी। बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रहा था अगर ये एलिमेंट होता है ना तो सर इसका ये होता है ना 2AB, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। अगर ये मिक्सचर होता तो 2A प्लस B, ऐसे 2A प्लस B मिक्सचर। लेकिन सर जब Fe प्लस S को किया था तो मिक्सचर में FeS आया था। बेटा FeS एक केमिकल फॉर्मूला बन गया, वहां पे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड है। FeS लिखा रहा हूं ना मैं, तो यहाँ पे 56 और 32 रेशियो, यानी कि 7:4 के रेशियो में आपका आयरन सल्फाइड कंबाइंड है, यानी कि 7 ग्राम आयरन 4 ग्राम सल्फर से कंबाइंड है। और ये फिक्स है, ये फिक्स रेशियो है कि जब भी आयरन सल्फाइड कंपाउंड बनेगा तो एक आयरन का एटम होगा, एक सल्फर का एटम होगा, इसलिए मैं इसको FeS बोल रहा हूं, 1 को इग्नोर कर रहा हूं। यस सर। डन? Yes, sir. यस सर डन। Yes, sir. Okay, we did our first assignment. Let's move on to the second assignment. सभी को दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। सर डन। You have 1 minute. Okay, tell me the answer. सर सी homogeneous soil। Where homogeneous है? Ice homogeneous compound है ये तो। क्या गुड होगा? गुड नहीं होगा। गुड के अंदर बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। तो 1 and 4। Next, which of the following alloys contain a non-metal as one of its constituents? इसमें से कौन सा ऐसा अलॉय है जिसमें से एक अलॉय ऐसा है जिसके अंदर नॉन मेटल यूज किया गया है? वो क्या है? स्टील। स्टील में किससे बनता है? आयरन प्लस, बताओ किस? Iron plus carbon. कार्बन से। So we need carbon in steel to mix with the iron. सर Yes. सर क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट था, मैं पूछ रहा था ये सर पहले तो हमें बोला कि आइस जो होता है वो H2O होता है, तो H2O तो कंपाउंड है, वो होमोजेनियस कहाँ से हो जाएगा? कंपाउंड बेटा, उसने होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बोला, उसने बोला सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस इन नेचर। तो कंपाउंड आर होमोजेनियस, ये तो बड़ा पढ़ाया है मैंने आप सभी को। ओके सर।
सर जब सिर्फ एयर गिवन होगा, प्योर एयर गिवन नहीं होगा, उस टाइम भी हम उसे मैं जब भी एयर बोल होमोजीनियस रहा हूँ प्योर एयर कंसीडर की बात करेंगे। कर रहा है। एयर मतलब प्योर एयर, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलो हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड वाटर एज सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक जो पढ़ाया है ना मैंने आप सभी को, सेपरेशन करवाए थे आप सभी को अभी मैंने, मिक्सचर और कंपाउंड को समझाते वक्त, उसकी मदद से मैंने क्वेश्चन तैयार किया है ये। कैन यू टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सैंड एंड सल्फर। सैंड एंड सल्फर। क्या बोला? Sand and sulfur. सर आइस एंड क्यों एयर। क्यों सैंड एंड सल्फर क्यों? सर बताएं। सर सल्फर देखिए बेटा, डिसॉल्व हो जाता है, आपको आपने समझना बताया पड़ेगा था। कि जब भी, देखो यहाँ पूरा सेपरेशन, सेपरेशन कराने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अगर आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं कोई, जैसे कि वाटर यूज कर रहे हैं, तो वाटर में आपने क्या कर डाला, ए डाला और बी डाला, और आप चाहते हैं कि सेपरेट करना है इन्हें, तो एटलीस्ट या तो ए या तो बी, इन दोनों में से एक इसमें डिसॉल्व हो जाना चाहिए, तभी ये सेपरेट। यस सर। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो अगर, Yes sir. समझिएगा, अगर आप कॉपर सल्फेट डालोगे तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड नहीं होगा, यानी कि ये तो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सैंड पोटेशियम, पोटेशियम डिसॉल्व होगा, सैंड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन, मतलब ये सेपरेट हो जाएगा। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, शुगर वाटर में डिसॉल्व होगा, शुगर डिसॉल्व करोगे तो हो जाएगा, लेकिन सैंड करोगे तो नहीं होगा। इसका मतलब शुगर को भी आप सेपरेट कर सकते हो, यानी कि ये भी ये तीनों हमारे गलत हो गए। ऑप्शन सी को देखो आप, ये कह रहा सैंड, सैंड वाटर डिसॉल्व नहीं होता। फिर कह रहा सल्फर, सल्फर भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। किसी को डाउट है इसमें? क्या होता है? यस सर, पोटेशियम क्या होता है? बेटा एक तरह का डबल सॉल्ट है ये, ठीक है। जैसे आप सभी सॉल्ट पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है सर क्या? क्या सर? आप सभी सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? सर Yes sir. सॉल्ट 7th में था topic. तो पढ़ा है। पोटेशियम जो है, दरअसल पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। यस। सर एक सेकेंड सर, चौथे में लिखा शुगर एंड सैंड। सर शुगर तो डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड नहीं होगा, तो ये तो सेपरेट हो जाएगा ना। हाँ, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो नहीं होगा। सैंड सल्फर दोनों ही सेपरेट डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी कि सही आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है KLSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ये इस कंपाउंड का नाम है, फॉर्मूला। इसका पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। सर आपने ए के बाद एल लिखा है सर, KAL। हाँ बेटा, K.Al एल्यूमिनियम डॉट सल्फेट। सर आपने पोटेशियम को क्या बताया था? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सर हाँ बेटा बोलो। सर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सर जो सेकंड नाम नोट कर लीजिए, में आएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन को बहुत साइंटिफिकली चूज किया हुआ है मैंने, पेपर के एनालिसिस करने के बाद। तो ये सारे नाम जो बता रहा हूँ ना, एग्जाम में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेशियम, और आपको याद आएगा, ओहो सर ने फॉर्मूला लिखवाया था, काश मैं याद कर लेता तो मैं टिक मार के आ जाता। और ये फॉर्मूला दे देगा, जिसने पढ़ा होगा उसमें, अरे सर ने बताया था इतना इजी है, इतना इजी है। और जिसने नहीं याद किया फॉर्मूला, वो कहेगा अरे यार चला गया। इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? ये क्वेश्चन डाउट में? नो सर। सर एक बार ये फॉर्मूला को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कर दो, यहाँ मेरे थोड़ी ब्लर आ रही है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डू डेकाहाइड्रेट।
पोटेशियम सर आपने 2 के बाद सर 12 लिखा है सर 12H2 सल्फेट डू डेका हाइड्रेट, इसका नाम है। सर इसका फॉर्मूला क्या है, वो थोड़ा मुझे यहाँ ब्लर दिख रहा है, वो बोल रहा था। बेटा फॉर्मूला इसका पोटेशियम है, इसमें एल्यूमिनियम है, 2 सल्फेट आयन है इसमें, और 12 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसमें। ये है फॉर्मूला इसका। सर ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या सर ये डॉट क्या बताता है कि ये डॉट ए एल डॉट एच? सभी आपस में अटैच है एक साथ, ठीक है, इनके बीच में अटैच कर रही है। हाँ, जो सेकंड क्वेश्चन में सोल्डर लिखा है ऑप्शन बी में, उसका मतलब क्या होता है? क्या सेकंड क्वेश्चन में जो सोल्डर लिखा है ऑप्शन बी, सर ये क्या लिखा है, डू डेका हाइड्रेट? हाँ बेटा नाम है डूडे का। डूडे का मतलब 12, डूडे का मतलब 12, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, 12 वाटर मॉलिक्यूल। सर हाँ बोलिए। सेकंड क्वेश्चन में बी ऑप्शन लिखा है सोल्डर कुछ SOLDER, उसका मतलब क्या होता है? मतलब वो कौन सा एलिमेंट? क्या कहाँ लिखा बेटा? बी ऑप्शन सोल्डर SOLDER। सर वो अरे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर। सर, वो 2 की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। सोल्डर की बात करो बेटा, सोल्डर एक अलॉय है, सोल्डर इज अलॉय, लेड और टिन से मिलके बनता है। अच्छा आप सभी ने मदरबोर्ड देखा है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का, उसके बैक साइड पे कांटे निकले होते हैं व्हाइट व्हाइट। यस सर। ये सर कहाँ पे? रेडियो सर उसमें यूज होता है। हाँ तो व्हाइट व्हाइट जो होता है ना, उसी को बोलते हैं सोल्डर। सर वाइट वाइट मतलब? बेटे आप सभी कभी मोबाइल खोल के देखोगे ना, पुराना मोबाइल या पुराना कोई टीवी या पुराना टेप रिकॉर्डर या रेडियो, उसके मदरबोर्ड पे बैक साइड में लोहे के इस तरह से कांटे होंगे। वो कांटे जो होते हैं वो ही सोल्डर होता है, वो टिन और लिड से मिलकर बनता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो हीट करके इसको मेल्ट किया जा सकता है और तारों को चिपकाया जा सकता है इससे चिप में। टीवी में भी होता है सर ये। सर जो सोल्डर्स होते हैं उनका यूज क्या होता है? बेटा ये तारों को जोड़ने का काम आता है। अगर आप दिवाली में लाते हैं लाइट्स लाते हैं हम, उनको भी देखना, उनके अंदर भी इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तारों को ज्वाइन करते हैं, इस तरह जॉइंट्स करने का काम आता है ये। ओके सर। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील का कंपोनेंट है एवरीवन? बी पार्ट। Sir, B part. आयरन क्रोमियम निकल, दिस इज द आयरन क्रोमियम निकल। जर्मन सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार JSTC मारने के चांसेस हैं इसके। पूछ सकता है कि जर्मन सिल्वर किस किस से बनता है, तो आप क्या बताओगे? कॉपर से, जिंक से, निकल से। आपको ये नाम याद रखना है, परसेंटेज वो कुछ ही बताए और ये नाम एक आपको तो डिफरेंट परसेंटेज कोट करती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ नाम यूज रखें, नाम याद रखें, तो नाम नहीं देगा, परसेंटेज चेंज कर सकता है, नाम याद रहेगा, आप ऑप्शन टिक मार सकते हो। सर बोलो। आपने जर्मन सिल्वर का लिखा रखा है, तो उसमें लिखा रखा है कॉपर प्लस जिंक प्लस सिल्वर। हाँ तो क्या हो गया, एक लिखा मैंने, कॉपर जिंक प्लस निकल, एक लिखा हुआ है, देखो तो निकल ही सर सिल्वर लिखा रखा है। क्या लिखा है? सिल्वर। सिल्वर लिखा नो है? सर निकल ही है। नहीं बेटा निकल लिखवाया है मैंने। वो सर निकल है। निकल है। सर निकल है। बेटा सही कर ले, उसको कॉपर है इसमें सर निकल लिखा है और निकल है उसमें। ओके सर। सर
हाँ जी सर मॉलिबेडनम का फॉर्मूला क्या होता है? सर जो एमलगम होता है वो सर मरकुरी और सिल्वर से ही बनता है ना? मरक्यूरी और सिल्वर डाल लो, मरक्यूरी और मरकरी उसमें और कोई लो, मेटल, जो मन करे वो डाल मरकरी लो। गोल्ड की होता है। अच्छा कोई आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर यूज कहाँ करते हो तो क्या बताओगे? हेलो, यस कहाँ सर। ये यूज होता है? मरीन फिटिंग, पेंसिल्स में भी। जो नाव वगैरह होते हैं ना उनके यूज करते हैं बेटा। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, सर सबमरीन्स में। जो नहीं होता साइंस से। या फिर प्लम्बिंग में यूज होता है ये। तो इनका करोजन, पानी के कारण करोजन नहीं होने के कारण बहुत बहुत कम करोजन होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, उसमें फिटिंग्स में काम करते हैं इसकी। कई बार क्या होता है, पेंसिल्स में भी होता है। ऑयल सी बनती है बेटा। सभी को क्लियर है असाइनमेंट? यस सर, यस क्लियर। सर। यस सर, ओके, क्लियर। तो हमने 2 असाइनमेंट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी तक एक असाइनमेंट और था, बट आप लोगों के क्यूरियोसिटी के कारण वो भी रह गया सर है। 3 है। हमारा पर्पस जो है वो लर्न करना है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है हमें। बेसिकली असाइनमेंट जो है ये मैं इस पर्पस से लेकर आया था ताकि आप लोगों को जहां तक पढ़ाया गया वहां तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाए। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में अब हम पहले सॉल्यूशंस खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी खत्म करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उन पर थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे और फिर इस असाइनमेंट को हम सॉल्व करेंगे, थर्ड असाइनमेंट को। मीनवाइल अगर कोई बच्चा करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि अभी हमें कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन को भी कंपेयर करना है, कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी को। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस राइट नाउ। तो पहले हम वो खत्म कर लेंगे, उसके बाद कुछ इस असाइनमेंट को हम देखेंगे जिससे कि हमें सारे क्वेश्चन समझ में भी आए। सर आई हमने होप स्टेनलेस आज स्टील में एक मॉलिबेडनम आई भी होप लिखा है। आज की सर क्लास। जर्मन सिल्वर की, हाँ बेटा, सर जर्मन सिल्वर की हाई रेजिस्टेंस होती है कि लो रेजिस्टेंस होती है? हाई हाई की लो? हाई होती है, वेरी हाई, वेरी हाई। आई होप टुडेज प्लम्बिंग क्लास क्या होता है सर जो आपने साइड ऑल में ऑफ यू। लिखा है? क्या बेटा?